आदाब नाजरीन, मैं हूँ रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड लीव अब्रॉड। लीव अब्रॉड। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने काफी वक्त से बढ़ाए रखा था सियासी पारा। कांग्रेस टीएमसी पार्टियां सियासी अखाड़े में दे रही थी बीजेपी को पटखनी, पर इस बार हमेशा बढ़ती कीमतों को लेकर निशाने पर रहने वाली बीजेपी मुखालिफिन पार्टियों पर हावी नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते वक्त में तेजी से भाग रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम लगाते हुए मरकजी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिससे अलग अलग रियासतों में लोगों को कुछ राहत मिली है, जबकि गैर बीजेपी रियासत जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई रियासतों ने अब तक वैट में कोई कटौती नहीं की है। और इसी को मुद्दा बनाकर अब बीजेपी बंगाल में माटी मानुस की सरकार को घेर रही है, क्योंकि बढ़ती कीमतों को लेकर टीएमसी ने भी खूब एहतजाज किए हैं और गरीबों की हित की बात की थी। आज शिल्पांचल के वेटरन पेट्रोल पंप पर इसके खिलाफ एहतजाज हुआ। মমতা ব্যানার্জি দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। পরিবেশ সরকারের নাম করে আসা মমতা ব্যানার্জি দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। कम किया और जहाँ जहाँ हमारे भाजपा केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश है, जहाँ उनकी सरकार है, सभी जगह कम हुआ है, लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ कम क्यों नहीं हो रहा है। आज ममता बहन से यह सवाल है कि आज अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी जगह होती आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, तो आप जरूर कम करती। आखिर क्यों नहीं हो रहा है पेट्रोल और डीजल का काम? आप क्यों नहीं वेट को छोड़ रहे हैं? जब हमारे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के, आपको भी छोड़ना होगा। जब तक अगर आप नहीं कम करते हैं तब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरह आंदोलन चलते रहेगा और हम बड़े से बड़े आंदोलन तक रहेंगे और हम आम जनता और गरीब को न्याय दिला के रहेंगे और ये कम करवा के रहेंगे। आज हमारा मंडल 2 की तरफ से ये आंदोलन हो रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे राज्य में और जिला में, सभी जगह मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर एक बड़ा बृहत आंदोलन किया जाएगा। जब तक आप कम नहीं करें तब तक हम यूं ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল মন্ডল 2 এর পক্ষ থেকে আমরা এই পেট্রোল পাম্পের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তার কারণ আপনারা জানেন, বিগত দিনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গরিব মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের সুবিধার জন্য পেট্রোল এবং ডিজেলের মধ্যে থেকে ট্যাক্স কমিয়ে নিয়েছেন। পেট্রোল প্রায় 10 টাকা এবং ডিজেল 10 টাকা এবং পেট্রোল 5 টাকা তিনি কমিয়েছেন। এবং তার সাথে সাথে যেসব বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে সেই সব রাজ্যরাও তাদের ভ্যাট কমিয়ে দিয়েছেন। আপনারা জানেন উত্তরপ্রদেশে আজকে মাত্র 85 টাকাতে লিটার ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে, অথচ সেইখানে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 96-97 টাকার রেট চলছে। বন্ধু, এত বেশি রেট চালাচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অথচ আমরা কিছুদিন আগে কি দেখেছিলাম, রাস্তায় তারা গরুর গাড়ি নিয়ে আন্দোলন করেছে, তারা গরিব দরদি হয়ে গেছিল। অথচ যখন সত্যিকারের গরিব মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে দাম কমানো উচিত ছিল, তখন মমতা ব্যানার্জি কি বলছে, আমার কাছে টাকা নেই, কোথায় পাবো? মমতা ব্যানার্জি যে পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলে সরকারে ছিল তার প্রমাণ হয়ে যায়। বন্ধু, আপনারা দেখেছেন মোদিজি ফ্রিতে রেশন দিয়েছে, আর এই তৃণমূলের লালু ভালু নেতারা তারা বলে বেরিয়েছে মমতা দিদি দিচ্ছে। যেই মোদিজি বললেন ফ্রির রেশন আর বাড়ানো হবে না, অমনি সৌগত বাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন, আপনারা না দিলে আমাদের ভাওতাবাজি চলবে না, আমরা বলতে পারবো না যে আমরা দিচ্ছি। ফ্রির রেশন দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই বন্ধু, কারণ তারা গরিবের স্বার্থ চিন্তা করে না। মোদিজি দিচ্ছেন,
সেইটা নিজের নাম ভারিয়ে তারা কাজ করছে। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস আর কিছু করে না, খালি মোদিজির দেওয়ার জিনিসগুলো নিজের নাম ভারিয়ে তারা দেয়। গরিব মানুষের স্বার্থে তাদের কোনো হেলদোল নেই। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি গরিব মানুষের স্বার্থে আমরা এখান থেকে দাবি করতে চাই, অবিলম্বে ভ্যাট কমানো হোক। পশ্চিমবঙ্গের জিনিসের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর জন্য যদি তখন আপনি মোদিজিকে দায়ী করেছেন, আজকে মোদিজি তার ট্যাক্স কমিয়ে নিয়েছেন, আপনি দায়ী। আপনি যতদিন না ট্যাক্স না পাওয়াবেন, এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য যদি কেউ দায়ী হয়, তার হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকার, তৃণমূলের সরকার। তাই আমরা এখান থেকে দাবি জানাতে চাই, অবিলম্বে মমতা ব্যানার্জি গরিব মামাটি মানুষের বলেন, উনি যেমনি বলেন সেমনি কাজ করে দেখান এবং অবিলম্বে ভ্যাট তিনি কমান এবং গরিব মানুষকে রেহাই দিন। এই हीरापुर थाना के कालाझरिया के रहने वाले 47 साला राजेश पाल ने कल रात खुदकशी कर ली, जिसकी वजह मिली जानकारी के मुताबिक इनकी बेरोजगारी बताई जा रही है। जी हां, ग्रेट ईस्टर्न लिमिटेड कंपनी में वो मुलाजिम थे, पर इन्हें काम से निकाल दिया गया, जिसके बाद ही इन्होंने ये कदम उठाया। इस हादसे के बाद AMIM के रहनुमा दानिश अजीज ने इनके परिवार से मुलाकात की और हमारे सहाफ़ी को जानकारी देते हुए कहा कि ये हाल सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि 29 और लोगों के साथ भी यही मामला है। ये कंपनी आखिर क्या करना चाहती है? इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर इसका हल नहीं निकला तो हम लोग एहतजाज करेंगे। কি করতে পারি দেখেন, একটা জিনিস বলছি, আমি লেটার করছি কালকে, আর যদি প্রয়োজন হয় আপনাদের যদি দাবিটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ঠিক আছে ফেলেন, আর যদি না হয় তাহলে আমি একটা কাজ করব, আমার লেটার প্যাডে লেটার করে এদেরকে উল্লেখ করে আপনাদের 17-18 জনের ওখানে সাইন লাগবে, হ্যাঁ এদের একটা জব আছে, সেটা করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা মেন রোড যে স্কোর মালটা বেরোয়, যেখান থেকে DM, ADM, CP সব বেরোয়, ওখানে বসে জাম করতে হবে। आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरी टीम की तरफ से हम लोग शामडी में कालाझरिया में कल रात एक आदमी का डेथ हो गया था, जो आपका ग्रेट ईस्टर्न पावर लिमिटेड में काम करते थे। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसी सदमे से उस लड़के ने जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। और ये हाल सिर्फ एक लड़के के साथ नहीं है, ये हाल कम से कम 17 से 18 जन के साथ है, तो बार 29 जन के साथ है। तो बार बार ऐसा ये ग्रेट ईस्टर्न पावर लिमिटेड ऐसा क्यों कर रही है? ये क्या करना चाह रही है ग्रेट ईस्टर्न पावर लिमिटेड? आखिर ग्रेट ईस्टर्न पावर लिमिटेड ये सब करके यहाँ के लोगों को क्यों मारना चाह रही है? जबकि यहाँ के लोग जब सुरक्षित नहीं है, जो लोग उन्हें जगह दिए, जो लोग उन्हें ज़मीन दिए फैक्ट्री करने के लिए, आज ये फैक्ट्री उन्हीं लोगों को मार रही है। इसीलिए आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पूरे टीम की तरफ से यहाँ पे आई और इस परिवार को अपना समर्थन दिया। और आने वाले दिनों में अगर इसका सही समाधान नहीं निकला तो हम सब मिलकर इस आंदोलन में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इन 29 जनों को उनका हक दिलाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को शुक्रगुजार करते हुए आप सब आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान ने एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के सामने गुरुद्वारा रोड पर इंतजामात को लेकर डेपुटेशन दिया। दरअसल यहां एक हाई मस्ट लाइट लगाई गई थी जो काफी वक्त से खराब है। इस सिलसिले में हमारे सहाफी को मजीद जानकारी देते हुए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस रोड पर 2 बड़े मजहबी मकाम हैं, एक गुरुद्वारा और दूसरा जगन्नाथ मंदिर, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और करीब ही 19 नवंबर को गुरु नानक डे मनाया जाएगा। ऐसे में इंतजामात का सही होना बेहद ज़रूरी है। अमरनाथ चटर्जी ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि 19 नवंबर से पहले लाइट का इंतजाम कर दिया जाएगा। सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। हमारे चेयरमैन साहब के पास, अमरनाथ चटर्जी के पास,
गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से हमारे गुरुद्वारा रोड में है कि वो काफ़ी दिन से बहुत अंधकार हुआ है, इसलिए हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से वहाँ पर हाई मार्क लाइट भी दिया गया है। जो हाई मार्क लाइट काफ़ी दिन से नहीं चल रहा, ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है, जिसके कारण रोड में काफ़ी अंधेरा है और बहुत सारे ऐसे जो एंटी सोशल लोग वहाँ पर घूमते फिरते हैं। और बहुत दो वहाँ पर हमारे धर्म स्थान है, एक जगन्नाथ मंदिर है, गुरुद्वारा बनपुर है, काफ़ी श्रद्धालु रोज़ सड़क पे आते हैं। इस कारण से हमें उनको आज जो हमारे वहाँ प्रॉब्लम थी वो बताने आए थे, वहाँ तुरंत लाइट का व्यवस्था किया जाए। 19 तारीख को हम लोग वहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म उत्सव है। तो उससे पहले वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि अब लाइट वहाँ पर तुरंत व्यवस्था कर दे रहे हैं आपको 19 तारीख के पहले। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे, उनके पास चल के अपनी जो फरियाद थी इलेक्ट्रिक की कमी के वो रखने आए। क्या आश्वासन मिला उनसे? आश्वासन ये दिए कि 19 तारीख को गुरु नानक देव जी महाराज का जो जन्म उत्सव है उसका पहले हम जो वहाँ पर लाइट का व्यवस्था कर। आपका नाम और परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का जनरल सेक्रेटरी। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Bed 1. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लिव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें
स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। रानीगंज सिटीजन फोरम की जानिब से आज शारद उत्सव सम्मेलन 2021 का एहतमाम किया गया। रानीगंज के सीताराम जी भवन में हो रहे इस प्रोग्राम के दौरान रानीगंज के MLA तापस बनर्जी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, ACP तथागत पांडे वगैरह मौजूद थे। दीप जलाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, साथ ही यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी किए गए हैं। चेयरमैन श्री अरविंद सिंघानिया के हमारे दुकाना अतिथियों के साथ स्वागत करें इसका, क्योंकि ये मतलब मीडिया और प्रिंट मीडिया और सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर একটু सामने থাকবেন, সাথে থাকবেন। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं गिरीश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ देवी नमोस्तुते देवं सर्वकार्येषु सर्वदा रक्ष रक्ष गणाक्षतय लोके रक्ष भक्तानां भयं कर्ता जयतां वरदस्तां वरं देवी वाञ्छितं। শিল্পীদের দ্বারা একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত হবে, তাড়াতাড়ি শুরু করুন আপনারা। যেতে হবে, তাই আমি বলেছিলাম ভালো ব্যবস্থা, ভালো উদ্যোগ, সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি যারা প্রেসিডেন্ট সদস্যরা আছেন। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।